Assalamualaikum everybody. I hope you guys are doing great, having a very good health and enjoying the life. So welcome back to our session. Let me know about my voice quality if I'm audible. So write down yes in the comments. So we're gonna go ahead. It's sounding good to me. Just please let me know about my voice if I'm perfectly audible. So write down yes in the comment. We're gonna go ahead. Okay, thank you so much everybody. Thank you so much for making me clear about the voice. So let's begin with the game. And today we're going to talk about some of the more things about another topic. And today we have a very interesting topic that I have explored for you, and I just want all of you to be clear about it. And thank you so much, everyone. Thank you all for making me clear about the voice quality. Today we're going to talk about some of the misconcepts that is in our mind, and we thought that what should we do in it. If I talk about a single tip, many of the students from that day to till at now are asking to me that yes please ma'am, let us know something about it. हम अपनी अंग्रेजी को कैसे improve करें? This is the main question, and I want to give this reply to everybody that how can you improve your English? Am I right? मैं आज सिर्फ एक सेंटेंस में आपको ये बात बताने वाली हूँ. There is no more ambiguous things. There is no more thing that I need to have a concern. And I'm going to a very short session. I'm going to conduct it today. And I at least try to make you very clear about this concept. That what do you think about it? And what things that is so beneficial for you for having such a great connection of your communication power. The people have a lot of questions in their mind, and the people are not getting that. What exactly they have to do and they haven't to do. By listening, okay. By speaking, sure, every one of you should please give your suggestion about it. What do you think about it? If I talk about a single tip, I want from all of you, let me know if I want to improve my speaking skill, what to do. Listening and speaking. I want a single tip from everyone's side. What do you think about it? This sounding good to me. That's it. Listening and speaking, reading, listening, speaking by reading the newspaper, practice, watching English shows, gesture, okay, listening and mocking, reading by speaking, doing the both, practicing listening and speaking, watching the English movies. Listening is the key to get a fluency, ma'am. Listening, reading novels. Okay, guess more, please. I'd love to have a reply from everyone's side. Listening, reading, and speaking. Less listening and more speaking. Speaking, reading, listening, speaking. Got it. Something more. Anybody also want to add something more? That's a quite fruitful for me to get that, to chewing or to digest. Practice in some with someone. Something good, Saad Khalid. Listening, watching English news, communication, talking. What else? Anything else that I found something new? Reading, listening, speaking, listening, reading, reading. Okay, I got a very little bit reply from everyone's side, and I think majority are guessing something same, that this is what you have to do it. Okay, guys. If I give you a one suggestion today from where to start and what to do, let's talk about it today. Many of the people having a lot of misconceptions about it. They thought listening कर लो तो speaking हो जाती है. Am I right? I saw. मेरे साथ agree or disagree कीजिएगा. Just please listen to me. Listen to me, please. I request all of you, please listen to me. I saw a lot of students. They're having a very good listening power. उनके सामने आप अंग्रेजी अब मुझे लगता है इस वक्त I have 100+ students in this classroom right now, and the guys can understand me. Am I right? All of you, I'm speaking continuously in English. I haven't shuffled my language. I'm gonna go with the flow, and all of you can understand me. Am I right? Am I right? Do you agree with me? Very right. Now let me know, do you think you can speak in such a better way as I'm speaking right now? You are very good in speaking. You sorry, in the listening. I totally agree with what are you talking about. I totally agree with that. I'm damn sure about it. मैंने कहा आप ये बताइए if you can do the same thing. जितनी listening इस वक्त अच्छी चल रही है,
क्या इतना अच्छा बोल सकते हो? जितनी अच्छी स्ट्रांगली पिकअप कर रहे हो। डोंट टॉक अबाउट सून, अभी की बात हो रही है, मुझे अभी का बताओ। कैन यू डू दैट? ओके, मैं स्पीडी वे में जा रही हूँ। देखो, मैं अंग्रेजी में ही जाऊंगी, आपने मुझे समझना है। मैं स्लो कर लूंगी अपनी स्पीड को। I try my best to speak much more fluent, but I try to make my speed at the very controlled manner. Keep in mind. मैं बिल्कुल इसे कंट्रोल करूंगी। अगर आपको जहां भी लगे मैं अंग्रेजी बहुत तेजी से बोल रही हूँ, स्पीड मेरी ज्यादा हो रही है, आई अलाउ एवरी वन ऑफ यू, आपने मुझे उसी वक्त शट अप कॉल दे देनी है मैसेज पे कि मैम प्लीज थोड़ा स्लो बोले। आई विल बी ओके विद दैट, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्विच माई लैंग्वेज। आपने अंग्रेजी में समझना है मुझे। दिस इज योर टास्क राइट नाउ। ठीक है? जहां लगे कि मैं तेज, बहुत स्पीड मेरी ज्यादा होगी, मुझे वही कह देना मैम प्लीज थोड़ा सा स्लो करना। आई विल बी ओके विद दैट, बट आई एम नॉट गोइंग टू कंसर्न विद उर्दू राइट नाउ। दैट्स अ वेरी क्लियर थिंग। अच्छा, मैंने कहा अंग्रेजी समझ सबको आती है, लिसनिंग सबकी बहुत हद तक क्लियर होती है। इंटर कर चुके हैं आप, मैट्रिक कर चुके हैं आप, ग्रेजुएशन कर चुके हैं आप, नर्सरी से लेकर 10वीं बड़ी बड़ा बच्चा इस वक्त जो मुझे सुन रहा है ना, इस वक्त 16 वालों की तो मैं बात ही नहीं कर रही। 16 वाले तो जरा एक अलग रो बना के लाइन में खड़े हो जाए। आई एम नॉट टॉकिंग टू दम। मैं इस वक्त उस स्टूडेंट से बात कर रही हूँ जो इस वक्त यहाँ पे मैट्रिक के बाद आया हुआ है। मैट्रिक वो लगा लो, उससे पिछले 3 साल लगा लो, जिसे हम प्ले ग्रुप, केजी, ये वो ये सारी चीजें होती हैं। 13 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। 13 साल, मतलब हद हो गई है। उसके बाद कह रहे हो हमें अंग्रेजी नहीं आती। मतलब व्हाट द हेल इज दिस? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द, वो ग्रेजुएशन वालों को तो मैं कहती हूँ वो खुद को खुद ही चपेड़े मार ले, मुझे जरूरत ही नहीं है कहने की उनको। दे गाइस हैव टू डू समथिंग। दैट इज मोर देन इनफ। 16 साल, यानी कि टोटल जिंदगी के 20 एबीसी हम कब से पढ़ते आ रहे हैं? मतलब हद हो गई है। कब से जरा एक दफा इमेजिन तो करें। कोई एक साल निकाल दे बीच में से ऐसा जिसमें आपने अंग्रेजी ना पढ़ी हो। है कोई साल याद? शायद हो सकता है 6 में मैडम ने कह दिया बेटा आपके पास चॉइस है, यू हैव टू चूज द सब्जेक्ट बिटवीन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। एम आई राइट? कभी ऐसा हुआ ही नहीं। 16 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे हो यार, उसके बाद कह रहे हो जी हम लिसनिंग करें, हम यही ये करें अच्छा। डीई वाले तो मैं कहती हूँ उससे भी अलग रो में चले जाएं साथ। डीई वालों को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, फिर भी उन्होंने 10 साल अंग्रेजी पढ़ी है। दिस इज वर्ड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। मैं डिसहार्ट नहीं कर रही हूँ मेरा, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। मेरी बात सुनिएगा। ये जो सारे कह रहे हैं ना रीडिंग कर लो, रीड तो भाई कर लेते ना, की क्यों नहीं? 16 साल से कर रहे हो, आती क्यों नहीं है? व्हाई वी पीपल आर इन द पाकिस्तान वी डोंट हैव अ फ्लुएंसी, क्यों आप बोलते नहीं है? मसला ये नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप बोलते नहीं है। दिस इज द मेन इशू। इशू ये है ही नहीं कि आप लोगों मतलब लिसनिंग नहीं आती हमें। हम लिसन भाई सुनते तो हो, कितनी सुनोगे? आपके सामने बोल रही हूँ मैं, आपको सबको समझ आ रही है यार। अब जिन लोगों को मैं ये टिप देती हूँ ना, अगर स्टार्ट लिसनिंग, वो लिसनिंग शुरू कर देते हैं। मैम सुन लिए मैम, 2 घंटे अंग्रेजी सुनी आज मैम, आज छा गए हमने इतने। अच्छा ठीक है, ओके गुड। अब मैम बोला तो नहीं, मैम बोलना तो नहीं आता ना अभी। अभी तो हम सुन रहे हैं ना मैम। मैम वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स राइट नाउ ना, अभी तो आता तो नहीं है ना, कैसे बोलेंगे? अच्छा फिर कब आएगा? वो तो अभी लिसनिंग प्रोसेस चल रहा है ना। आई एम जस्ट हैविंग ऑल दैट थिंग्स इन माय ब्रेन एंड देन आफ्टर दैट टू द वेरी फर्स्ट डे मेरे अंदर अंग्रेज अभी जा रहा है। फिर एक दिन वो ऐसे छड़ी घुमाएगा और वो बोलेगा हेलो एवरीबॉडी दैट आई एम हियर राइट नाउ, हेलो लिसन टू मी दैट आई एम हियर। वो हमें लगता है एक दिन ऐसा कुछ होगा, हमारे फिर अंग्रेजी निकलेगी, मजा आएगा। हाय 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 हाय, पता तो लगे अंग्रेजी बोली है। हम उस दिन चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट टेकिंग एन एफर्ट एंड वी आर नॉट टेकिंग द पेन राइट नाउ। एम आई राइट? ऐसे ही चल रहा है ना हमारा। खत्म, आती तो सबको है भाई। who's the person who's standing and taking the classes and unable to understand me? But the people are not ready. They're having this kind of a stuff in the mind that I am listening to the very first day। मैं बोलूंगा नहीं, अभी नहीं बोलूंगा यार, अभी तो listening process चल रहा है, अभी कैसे बोलूं? मुझे तो वर्ड्स ही नहीं समझ आ रहे। I don't have any idea। इसका ना सबसे अच्छा तरीका मैंने अभी तक का जो अपनी पूरी की पूरी एक लाइफ से स्ट्रगल आउट किया वो यही है, आप थोड़ा सा स्विच कर दें अपनी लैंग्वेज को। थोड़ा सा स्विच कर दें। कैसे? मैं स्पीकिंग की बात ही नहीं कर रही। मैंने नहीं कहा बोलो। मैं आज मैं स्पीकिंग को क्रॉस लगा रही हूँ, मैं लिसनिंग को भी क्रॉस लगा रही हूँ। मैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो मशवरे इतनी देर से आप मुझे दे रहे हो, मैं ना कहती सुनो, मैं ना कह रही आप लोगों को स्पीकिंग करो, ना मैं ये कह रही हूँ आपको कि आप लोग रीडिंग करो। मैंने कहा 16 साल से पढ़ रहे हो तो भाई आनी होती तो वैसे आ जाती। Now what you guys have to do, that is what I'm telling you, something new. This is called
आपने अपने दिमाग की ट्यूनिंग करनी है पहले। दिमाग की ट्यूनिंग कैसे? लिसनिंग सबकी ठीक है। नाउ व्हाट यू गाइस हैव टू डू इट, ना अपने स्पीकिंग पे इतना तवज्जो देना, ना अपने लिसनिंग पे इतना तवज्जो देना। यू हैव टू गो विद एन अनदर ट्रैक दैट इज कॉल्ड थिंकिंग। अच्छा, या तो आप लोग आपस में एक दूसरे को खुद जवाब दे लो या मेरी सुन लो यार, एक काम कर लो। मैं I'm just giving a reply right now, so it's something good if you guys please allow me for that. मैंने कहा थिंक इन इंग्लिश। अब सवाल ये मैम सोचे कैसे, क्या करें, नया दिमाग लगवा लें, किसी अंग्रेज के साथ चेंजिंग करा लें, उसको बोले यार थोड़े देर के लिए अपना उधार दे दो, मेरे से ले लो। वो तो शायरी से भरे पड़ा है, ये अच्छा है नजर खान। आई ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश। अच्छा, थिंक इन इंग्लिश कैसे होता है दिल अब्बास, जरा मुझे ये तो बताओ। मैंने कहा आई ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश। अब सवाल ये है, मैंने भी ये पहले बहुत सारी जगह पढ़ा कि यार थिंक इन इंग्लिश, बहुत सारी जगह, ये मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, थिंक कैसे करते हैं, मतलब ये तो एक नेचुरल सिस्टम है। मैं एक छोटी सी मिसाल, अभी आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ, जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं आपके सामने ना अभी अपनी स्क्रीन को करती हूँ शेयर, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी। मैं इस वक्त, जस्ट होल्ड ऑन, दिस इज व्हाट द डाउनलोडिंग आई एम गोना टॉक अबाउट। ओके, अच्छा भाई शहजादों और शहजादियों, आई नीड अ पिन ड्रॉप साइलेंस है अगेन। मैं इस वक्त आपके सामने कर रही हूँ अपनी स्क्रीन को शेयर। यार इस पिक्चर में आपको जो कुछ नजर आ रहा है, कैन यू प्लीज राइट डाउन क्या क्या नजर आ रहा है? कैन यू प्लीज राइट डाउन? आपको जो कुछ नजर आ रहा है, क्या आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे? आपको जो कुछ नजर आ रहा है, जो कुछ भी इस वक्त आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ना, प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में क्विकली ड्रॉप कर दें। आई हैव चेंज द नेट। आई एम गिविंग अ 1 मिनट टू एवरी वन ऑफ यू। सिर्फ 60 सेकेंड्स है आपके पास, क्विकली डू दैट। जो नजर आ रहा है कमेंट में लिख दो। डन विद ऑल? Okay, let me come back. Okay, so here I am, and now I start reading your answers. अच्छा, सबने कहा कलर्स थे यहाँ। प्लीज मुझे प्लीज अभी मैसेजेस नहीं कीजिएगा, मुझे जरा आप लोग के मैसेजेस पढ़ने दें। सो यू गाइस टॉक अबाउट, ओके, आपने कहा जी यहाँ पर बेबी नजर आ रहा है हमें। वी हैव अ बॉसी बेबी, different tab, some pictures, okay, ball, baby, cake, bat, football, birthday celebration. Don't do that. Teddy bear, then we're gonna say happy birthday, baby boss, 1 year, bottle, bat, birthday, cake, whatever, boss, better. Okay, that's it. Okay. मैडम आपका माइक किस वक्त अनम्यूट है, काइंडली इसको म्यूट कर, अनम्यूट कर लें। म्यूट था। Yes, I have unmuted, Musa. Thank you so much for informing me. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी जुमला क्या बोला था?
मैंने अभी जुमला क्या बोला था? नहीं, ये तो बात ही नहीं। मैंने ये अभी जैसे पिक्चर शेयर की, मैंने कहा इस तस्वीर में आप लोगों को जो कुछ नजर आ रहा है ना, वो मुझे बताएं क्या क्या नजर आ रहा है, और आप सबने वही बताया। एम आई राइट? ऐसे ही हुआ है? आपको वहां पे फीडर नजर आई, आपको बोतल नजर आई, आपको बेबी नजर आया, आपको केक नजर आया, आपको डिफरेंट जो कुछ कलर्स नजर आए, सबने डिफरेंट कलर्स के नेम लिख दिए। ब्लू कलर था उसमें, व्हाइट कलर नजर आया, सबने वही किया जो नजर आ रहा था। आपने वो एग्जैक्टली हसीबा, आपने वो बयान किया जो आपको नजर आ रहा था। क्या मैंने आप में से किसी को भी कहा था कि अंग्रेजी में बताओ मुझे इन सब चीजों के नाम? या आपको उर्दू में नीला लिखना नहीं आता, या सफेद लिखना नहीं आता? क्या मैंने कहा था अंग्रेजी में बताना? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने तो सिर्फ कहा था जो नजर आ रहा है यार लिख दो। एम आई राइट? यार हमने स्पीकिंग भी नहीं की, आपने क्या किया जस्ट राइट नाउ? आपने किया क्या? सबने थिंक इन इंग्लिश। दिस इज व्हाट आई वांट टू हिट यू। याद रखिएगा। नाउ कम बैक टू द पॉइंट गाइस, दिस इज व्हाट आई वांट टू हिट दैट। ये चीज थी जो मैं आप लोगों को भी बताना चाह रही थी। हम मसला स्पीकिंग का नहीं है भाई, मसला ये हमारी वोकैबुलरी का बेड़ा करके है। जिस चीज का अभी इसमें से मैं कोई ऐसी तस्वीर आपके सामने रखती जिस चीज का आपको अंग्रेजी में नाम ही ना आता होता, आप कहते मैम ये क्या है, मैम इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपको पता था ये बोतल है, आपने बोतल कह दिया, आई मीन शौकी में अंग्रेज बन गए हो। नहीं तो सारे कुछ और ही लिख रहे होते। नहीं तो इसे नीला पीला हरा कलर नेम नहीं आते क्या आपको उर्दू में? क्या अंग्रेज अमेरिका से आए हो? किसी ने नहीं पढ़ाया आपको उर्दू में नेम? क्यों लिखा कलर? आप रंग भी तो लिख सकते थे। क्या मैंने कहा था अंग्रेजी में बताओ मुझे? जब आपके दिमाग में वोकैबुलरी होती है ना, याद रखिएगा, अगर आपका दिमाग स्विच है, थिंकिंग हो रही है, तो भाई आप बोलते हो। जब थिंकिंग स्टॉप है ना, आप नहीं बोलते। स्पीकिंग में मसला यहाँ है। दिस इज द मेन पॉइंट दैट यू पीपल हैव टू प्लीज हिट दिस थिंग। ये है वो जगह जिसके ऊपर हम में से कोई काम नहीं कर रहा। आप में से मैंने सबको कहा कि भाई जो नजर आ रहा है, इस वक्त 100 लोग हैं, मैं 100 के 100 के दिमाग के साथ खेल गई हूँ इस वक्त। मैंने कहा भाई लिखो। आप सबने लिख डाला, मगर मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, हालांकि जबकि मैंने शुरू से सेशन में बोला मैं उर्दू नहीं बोलूंगी। मैंने जान के लैंग्वेज स्विच कर दी। मैंने बोला जो नजर आ रहा है लिख डालो। और मैंने किसी को बाउंड नहीं किया कि भाई आप लोगों ने अंग्रेजी में लिखना है। क्यों? अगर इमेजिन करो आपके सामने इस वक्त दीवार है, आपको दीवार की अंग्रेजी नहीं आती, जरा थोड़ा सा उन लोगों के बारे में सोचो जिनको अंग्रेजी नहीं आती, जिनको उर्दू भी नहीं आती। पंजाबी सराय की बलोची बंदे होंगे ना, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनके सामने आप दीवार की तरफ इशारा करेंगे ना, वो वही नाम लेंगे दीवार का जो उनकी लैंग्वेज में लिया जाता है, वो दीवार नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास वोकैबुलरी नहीं है। ऑन द बैक आप लोगों ने भी यही किया। आपके पास वोकैबुलरी थी तो आपने बोल दिया। अगर वोकैबुलरी ही ना होती तो आप बोलते ही ना। तो मेन मुद्दा ये है भाई, वोकैबुलरी बढ़ा लो बस अपनी। दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू क्लियर। आपको हर चीज का नाम आता होगा ना, आपको पता होगा इस चीज को क्या कहते हैं। हम मैम मैं इतना कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं इतना कुछ बोलना चाहती हूँ, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता, मेरे दिमाग में इतने सारे आइडियाज होते हैं, मैं सोचता हूँ उनको एक्सप्लेन करूं, मैं सोचती हूँ उनको बता, मगर मुझसे बोला नहीं जा। ये सारे ABC वाले एक्सक्यूजेज हैं। मसला वोकैबुलरी का है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता सैयद नूर आपको उर्दू में ना आते हो, मैं मानती ही नहीं। आप पाकिस्तानी हैं, आप अमेरिका से नहीं आए। आप ना भी आते हो ना, आपने अपने सोशियो बैकग्राउंड से ये सारे कलर नेम सीखे हुए हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ये चीजें बोलते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूंगी वोकैबुलरी पे। नाउ कम बैक टू द पॉइंट। जिस जिस मुद्दे पे मैं इतनी देर से आप लोगों को लेके आना चाह रही थी। भाई वोकैबुलरी बढ़ानी है हमने। हर चीज का नाम आता होगा, हर चीज के बारे में पता होगा, तो आप बोलोगे। जहां फंसते वहीं हो, अंग्रेजी रुकती ही वहीं है जहां पता नहीं होता चीज का। वर्ड ही नहीं पता, हम सोच रहे हैं। भाई क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि एक्टिव माइंड में ही नहीं पड़ा वो चीज कैसे यूज करें। अब मैं कभी भी ना स्टूडेंट्स को अब मैं कहती हूँ यार वोकैबुलरी बढ़ानी है। चलो लेट्स कम बैक टू अनदर डिस्कशन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया जी कि हमारा मेन मुद्दे वाली चीज क्या है? हमने क्या करना है? अपना थिंकिंग चेंज करनी है अपनी। हर चीज का नाम अंग्रेजी में ढूंढो जरा बैठ के। हर चीज को सर्च आउट कर दो। मैं कहती हूँ इंटरनेट का बेड़ा गर्क कर दो, ढूंढो हर चीज को क्या कहते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। अच्छा, मैं भी आप लोगों से पूछना चाहूंगी, इमेजिन करें आपको, मैं कह रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, मैं इस वक्त बेबीज को नहीं पढ़ा रही। देयर आर ऑल द प्रोफेशनल्स आर देयर, graduated, intermediate, and a very concerned person is here connected with me. आपसे मशवरा ले रही हूँ। मुझे बताइए, अगर हमें अपनी वोकैबुलरी चले
अगली अगली डिबेट शुरू कर दें। बताइए जी। अब आ जाए वापस जरा, मुझे थोड़ी सी एक बार फिर से गेम खेल लेने दें आप लोगों के साथ। आई होप पिछली गेम आपको पसंद आई होगी। जी, हर चीज को अंग्रेजी में एवरीथिंग ही कहते हैं। मैं ले रही हूँ मशवरा, मुझे बताइए वोकैबुलरी को बढ़ाना है, क्या करूं? मैंने बोला है कि मुझे अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है। यार मेरी वोकैबुलरी ना बहुत लिमिटेड है। मुझे कोई टिप दे दें कैसे वोकैबुलरी बढ़ाई जा सकती है। क्या पढूं, न्यूज़पेपर पढूं? प्लीज मुझे मशवरा दीजिए। आपको क्या लगता है वोकैबुलरी कैसे बढ़ाई जा सकती है? सिनोनिम्स देखूं? ये सैयद नूर, ये आप पर्सनल हिट कर रहे हैं अब आप मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग का कह के। ये तो अभी मैं आऊंगी यहाँ, आप ना आए यहाँ, यहाँ मैं आऊंगी बाद में। अच्छा, डॉन न्यूज़पेपर, ठीक है। एनहांस द वोकैबुलरी, रीडिंग रीडिंग बढ़ाऊं, ओके। जिस चीज को देखें उसकी इंग्लिश सर्च आउट करें। शाबाश शहजादी, छा गई हैं आप रिहाना। सर्चिंग करें बुक्स की, बाय सर्चिंग। रेडियो न्यूज सुने, इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश गुड, गूगल आइडियाज, लिसनिंग। डिक्शनरी का इस्तेमाल करें, ओके। सर्चिंग करें बाय रीडिंग द बुक्स एंड द इंग्लिश न्यूज़पेपर। ग्रामर बेहतर बनाऊं, जिस एनवायरनमेंट में हूँ उसकी इंग्लिश सर्च करूँ, ठीक है। कीप इन माइंड एवरीथिंग यू वॉच एंड लिसन, सब कुछ जहन में रखूं, ओके। बीबीसी पॉडकास्ट सुनूं, रीडिंग और स्पीकिंग करूं, ताहिर कहते हैं, ठीक है ताहिर। एक्टिव क्या करूं, निकाल के उसको क्या चार्जिंग पे लगाऊं क्या? दिमाग को एक्टिव कैसे करूं इसको? अच्छा, सब पता है सबको, पर करते ये अच्छा था, सारा को पता है भाई। आप यकीन करें, ऐसे फिलोसोफर लोग होते हैं ना, आय हाय हाय, मैं कहती हूँ छा जाते हैं। पर करना ये मैं बता रही हूँ, जितने सारे कह रहे हैं ना न्यूज़पेपर पढ़े, कसम ले लो मेरे से। मैं कहती हूँ चलो भाई पढ़ो न्यूज़, एक सफा पढ़ के दिखा दो मुझे, इनमें से कोई एक भी पढ़ लेना। ये जो सारे बुक्स पढ़ा करे ना, बुक्स क्यों नहीं पढ़ती हैं आप? अच्छा यार तुम लोग ये बताओ, आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो बुक्स? अगर आप लोगों को ये सारे तरीके पता ही हैं तो भाई करते क्यों नहीं हो यार? करते क्यों नहीं हो? मुझे ये बताओ जरा। सारे तरीके सबको पता है, सब कुछ पता है, नॉवल पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, डिक्शनरी उठा लो, तो भाई करते क्यों नहीं हो? ये बताओ मुझे पहले से। ये बात छोड़ दो, अब मैं क्या बताऊंगी? सारा कुछ तो पता है आप लोगों को। यूज गूगल ट्रांसलेटर। अच्छा, अब ना जरा थोड़े से रियलिस्टिक हो जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है जी, सुन सुन लिया मैंने सबका। अब पता है क्या, हम इतने अच्छे नहीं हैं। हमें ये सब पता है। ये जो मुझसे जब पूछते हैं ना आप लोग कि मैम वोकैबुलरी बढ़ानी है, क्या करूं? इससे पहले आप मुझसे पूछते हैं, मैंने खुद ही पूछ के ना, ये जिसका ये सवाल हो ना इनमें मेरे से, मैम प्लीज बताइए वोकैबुलरी क्या। भाई स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कहती हूँ सारे फिलोसोफर्स के रिप्लाई आए मैं ऑलरेडी। तो ले लो, फ्री में इल्म बट रहा है यहाँ। अच्छा, अब आते हैं जरा मुद्दे की बात पे कि रियलिटी क्या है। ये जितना कुछ है ना, हम इसमें से कुछ भी नहीं करते और ना कर सकते, बात सीधी सी है। हम इतने बिजी हैं, माशाल्लाह इतने बिजी हैं हम, हमारे पास दुनिया में हर काम करने के लिए टाइम है, सिवाय ये वाला काम नहीं होता यार, नहीं होता यार, नहीं होता। मेरे पास जाती, मैं कह रही हूँ मेरी अपनी स्पेशलाइजेशन इंग्लिश में। आप लोग तो साइड पे जाओ, मेरी अपनी स्पेशलाइजेशन इंग्लिश में। मेरे पास 4 डिक्शनरीज हैं, बड़े शौक से खरीदी थी। कसम उठवा लो, आज तक नहीं खोल के देखी। आज तक नहीं खोल, मैंने खुद शौक से, हाय मैं अंग्रेजी में स्पेशलाइजेशन करूंगी ना तो लोग मुझे कहेंगे अच्छा आपको जो है वो अंग्रेजी, मैं पढ़ूंगी इसमें से। रो, यकीन करो यार, एक पेज पढ़ती हूँ अगले पेज पे जाती हूँ, पिछला भूल जाता है मुझे। याद रखने की कोशिश करती हूँ तो उनको मैं फॉर एग्जाम्पल याद कर भी लूं, तो जब मुझे एक्टिव तौर पे उस वर्ड का इस्तेमाल करना होता है ना कहीं नॉर्मल लाइफ में, मैं वो एक्यूरेट उस लम्हे में भूल जाती हूँ वो वर्ड क्या था, हालांकि उससे आगे पीछे याद होता है मुझे। am I राइट? ऐसा होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो भाई वेलकम टू माई क्लब। am I राइट? ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता था। आप लोगों का पता नहीं। मैंने कहा ना वेलकम टू माय क्लब, क्योंकि हम सारे ऐसे ही हैं। हमने ये सारे मसले फेस किए। आगे चलते हैं, 10 लफ्ज याद करते हैं, उससे अगले पेज पे पढ़ते हैं, 10 और पिछले भूल जाते हैं, पिछलों को याद करने की कोशिश करते हैं तो आखिरी जब टाइम पे यूज करने होते हैं तब भूल जाते हैं, यूज करते हुए याद रहते हैं तो आगे भाई याद ही नहीं रहते। तो फिर ये मशवरे किस मुंह से दे रहे हो आप मुझे कि ये इधर एक दफा फ्रंट कैमरा खोल के अपनी शक्लें देखना जरा यार, कैसे, हाउ कुड यू प्ले विद माय स्टूडेंट्स यार? ऐवे दे दिया सबको, मशवरे दे दिए फ्री में, न्यूज़पेपर पढ़ो ये कर। यार हाउ कुड यू प्ले विद दैट, मतलब कैसे?
सबको पता है, मैंने तो इसलिए रियलिटी बता दी भाई, मैं तो नहीं करती ये सारा कुछ। आप माशाल्लाह बड़े आलिम फाजिल लोगों कर सकते हो यार, ऐसा मैं तो नहीं कर सकती। ओहो, मुझे तो चक्कर आने लगे थे आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के, ये कर ले मैम वो कर, मैं तभी तो मैं हंसी हूँ यार, फिर करते ही क्यों नहीं है तुम लोग ये सब कुछ जब सब पता है तो। फिर से खेल गई ना, आई एम अ वेरी गुड गेमर फरीहा। अच्छा, अब आते हैं जरा मेरे मुद्दे पे। अब मैं कैसे वोकैबुलरी को सजेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को हमेशा, यार छोड़ो, हम असल में हम खेलने वाले लोग हैं ना, हम खेलते बड़ा अच्छा है, हम गेमर हैं, तो हम गेम्स के थ्रू चीजों को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, उमर ये पॉइंट अच्छा है। हम 80% वोकैबुलरी ना, एग्री करती हूँ मैं उमर ख्वाजा जुल्फ़िकार की बात से। ज़रा उमर का मैसेज पढ़िएगा। उन्होंने कहा, "मैम, आई थिंक हाउ मच वोकैबुलरी वी नो इज़ इनफ।" जितनी हमें अंग्रेज़ी आती है ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। इंग्लिश, वी जस्ट नीड इंग्लिश लैंग्वेज थिंकिंग एंड देन प्रैक्टिस। बड़ी बेहतरीन बात की है इन्होंने, बड़ी कंसाइज़ वे में, कि भाई जितनी आती है ना उतनी काफ़ी हैगी। इतने फन्ने-ख़ां बनने की ज़रूरत नहीं है। बोलनी तो शुरू करो। बोलो तो सही, उसकी प्रैक्टिस में तो लेके आओ उसको। उसको थिंक तो करो, स्विच तो करो उसे। अब व्हाट आई डू इज़, मैं इस वक़्त सबके पास पेन एंड पेपर है हाथ में? अगर नहीं है तो यार 2 मिनट दे रही हूँ, भाग के ले आओ, जल्दी से उठ जाओ प्लीज़। और अगर अवेलेबिलिटी में नहीं है, लाइक इस वक़्त आप कहीं बाहिर हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वक़्त अपने मोबाइल का नोटपैड या कंप्यूटर का नोटपैड ओपन कर दो, क्विकली प्लीज़। पेपर पेन है तो साउंडिंग गुड, मुझे सिर्फ डन लिख दोगे, मुझे कहानी नहीं सुनाओ, मेरे पास है, मेरे पास नहीं है। और उधार भी ना माँगना मेरी क्लास में, यार एक पेन तो दे दो, यार एक पेज फाड़ के देना, ये नहीं करना, अपना-अपना खोलो सारे। जल्दी से खोलो और उसके बाद मुझे डन कर दो, क्विकली, हरी अप। डन विद ऑल आई थिंक। चलें जी, वेरी गुड। अब इस वक़्त जो मैं कर रही हूँ, पीपल हैव टू डू द सेम थिंग हियर। मैं इस वक़्त अपनी स्क्रीन के साथ खेलूँगी और आप लोग अपने-अपने व्हाइट बोर्ड के साथ, यानी कि अपने-अपने पेपर के साथ, इन शॉर्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप लोगों ने करना क्या है जी, यू पीपल हैव टू गो विद अ वेरी राइट ट्रैक, और आपने इस तरह से एक सर्कल लगाना है पेपर के मिड में। छोड़ दें अब, बस डन, मुझे प्लीज़ रिप्लाई नहीं करें अब। सिर्फ़ ये एक सर्कल लगा लें मिड में। इस मिड में सर्कल को लगाने के बाद राइट डाउन द नेम ऑफ द प्लेस वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ। आप इस वक़्त अपनी गाड़ी में हो, रूम में हो, किचन में हो, जहाँ कहीं भी हो। जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द प्लेस हियर लाइक दिस। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, आई एम इन माय रूम। आप सब भी अपना-अपना प्लेस लिख दें। अपनी-अपनी जगहों पे, जो जहाँ पे आप बैठे हो। कार में हो, कार लिख दो। आप इस वक़्त शॉपिंग मॉल में हो, शॉप, आप अपनी शॉप पे बैठे हो, शॉप लिख दो। ऑफ़िस में हो, ऑफ़िस जहाँ चाहे दुनिया के जिस कोने में हैं आप। अब मुझे डन लिखेंगे लिखने के बाद, क्विकली हरी अप। आई नीड टू गेट इट डन फ्रॉम 100 प्लस स्टूडेंट्स, क्विकली प्लीज़। Thumbs up. I need to get a thumbs up from everyone. Done, 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 done. That's why I'm gonna proceed it up again. मुझे सबके डन चाहिए, सबके, all in all. Very good. Now please listen to me. आपने करना क्या है? प्लीज, अभी कोई करेगा नहीं, मेरी बात पहले सुन ले। मैं प्रॉपर्ली आपको टाइम दूंगी ये गेम खेलने का। प्लीज, मैं फिर कह रही हूँ, अगर मुझसे बार बार कोई पूछेगा ना क्या करना है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। एक बात सुन ले सारे, मैं प्रॉपर टाइम दूंगी इस गेम को खेलने का आप सबको। मगर अभी इस वक्त सब पेन छोड़ देंगे और मेरी बात गौर से सुनेंगे। आप सब ने करना क्या है, इस तरह से लाइंस लगानी है इर्द गिर्द, ठीक है? और इनके एंड पे हर उस चीज का नाम लिखना है जो आपको अपने इर्द गिर्द नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने इस वक्त पेन पड़ा है, मैं यहाँ पेन लिख रही हूँ। मेरे सामने इस वक्त चार्जर पड़ा है, आई एम राइटिंग डाउन द चार्जर, वट एवर। मतलब जो कुछ भी इस वक्त आपके सामने पड़ा है, राइट डाउन द नेम ऑफ एवरीथिंग। प्लीज लिसन टू मी वंस अगेन। इस गेम के लिए मैं आपको प्रॉपरली अगले 3 मिनट दे रही हूँ। मैक्सिमम वर्ड्स ढूंढे। 3 मिनट में आप कितने वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो? मुझे यस, नो, डन, ओके कुछ नहीं चाहिए यहाँ। आई नीड अ पिन ड्रॉप साइलेंस। मुझे कोई पूछे भी ना, अभी अगले 3 मिनट तक मुझे कोई चैट में मैसेज भी ना आए। 3 मिनट बाद मैं आप लोगों को खुद रिकॉल कर लूंगी, मेरा माइक भी ऑफ है अगले 3 मिनट तक। अगर मुझे कोई मैसेज आया भी, मैं रिप्लाई नहीं करूंगी। यू पीपल हैव टू बी देयर, डू दिस एक्टिविटी, और मुझे आप बताएंगे कि आपने कितने वर्ड्स को पिक किया। क्विकली प्लीज, मुझे डन ओके कुछ नहीं चाहिए, कुछ
मूसा, इट साउंडिंग गुड। अगर आप प्लीज प्राइवेसी मेंटेन करें और स्टूडेंट्स की स्क्रीन शेयरिंग रोक दीजिए तो ताकि हम कोर्स को लेके चलें। थैंक इससे लास्ट मिनट गाइस, मैं फिर कह रही हूँ, मुझे इस वक्त जो भी अगर कोई कंप्लीट डन जो भी बोल रहा है, मैं किसी के भी बात को कंसीडर ही नहीं करूंगी जब तक मेरे 3 मिनट नहीं पूरे होते। जब तक मैं आपको अलाउ नहीं करती मैसेज का, यू आर नॉट अलाउड टू राइट डाउन एनी मैसेज। जब मैं आपको प्रॉपर कॉल बैक करूँ, यू हैव टू कम बैक। इट्स लास्ट 10 सेकेंड्स यू हैव टू कंप्लीट। आप प्लीज 10, 9, 8, जितने मैक्सिमम वर्ड्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डू इट राइट नाउ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come back, guys. All of you come back and write down yes in the comment, please. Quickly. सिर्फ मुझे भी yes लिखेंगे. I don't want any countdown. I don't want any countdown. I need to get a yes from everyone's side. Quickly, please. I need to get all of you back. I need to get all of you back. Please leave the pen and come back, everyone. Write down yes and just show me your presence here in the comment section. Thank you so much, everybody. This is what I want. एक अच्छा लगता है सेशन, बड़ा प्रॉपर मैनेज हुआ है, प्रॉपरली चीजों को एंगेज करते हुए. यू गाइज आर रियली ऑसम, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यू गाइज आर डूइंग सुपर्ब. अब काउंटडाउन करें और क्विकली मुझे अपना अपना काउंटडाउन लिख दें कमेंट में. हरी आप जल्दी जल्दी काउंटडाउन लिख दें, किसने कितने लिखे हैं. ओके, 18, 11, 31. वेरी गुड. 7, 18, 18, 10, 15, 28. अभी तक हाई पे इस वक्त 7 जा रहा है. नाम याद रखना भाई, 7 खालिद. ओके, 31. ना ओके, वसीम, मोहम्मद वसीम. राइट डाउन 90. ओके, ओके. 10, 15, 16, 25, 13, 12, 10, 27, 32, 31. एक और आ गया, जुल्करनैन. ओके, हमारा क्रॉस स्टार्ट, हमारा 33. अरूबा 33. ओके, इसको कोई क्रॉस करते हैं जी. और 90 वाले को भी याद रखिएगा, वसीम थे आई थिंक. 90, 20, 17, 13, 20, 32, 20, 16, 30, 52. मेगा कंप्यूटर्स. ओके, काउंट डाउन. कायनात 40. मेगा कंप्यूटर्स याद रखेंगे जी. ओके, 12, 90. अब्दुल्ला खजर. वेरी गुड, very good. 14, 12. No words. 37. Fariha, very good. 90. Okay, sounding good. Okay, ठीक है. Okay, okay. ये जरा 90 वाले कौन कौन थे? The one was Mega Computers. Second was I think कौन था? और मोहम्मद वसीम. Am I right? ठीक है यार, रुको तो सही, रुको जरा, सब्र करो, रुको जरा. मोहम्मद वसीम थे, खजर नहीं थे, मोहम्मद वसीम थे. शिदा तो सामने आ जाओ, 90 वाले दोनों. ओके, तो फिर सरेआम खेलते हैं वसीम साहब. टेंशन कैसी है, रुकें तो सही. Okay, I'm going to open the mic of Wasim right now. यार, यार तुम लोग सारे इतनी जजमेंट नहीं करो यार, रुको तो सही. सुनते हैं अभी 90 वर्ड्स, क्या जल्दी है, हम भी तो सुने. 9 वर्ड्स 3 मिनट में, 90 वर्ड्स क्या लिखे हैं अभी पता लग जाएगा, रुको जरा. मोहम्मद वसीम, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, प्लीज एक्सेप्ट द नोटिफिकेशन. माइक ओपन कीजिए वसीम साहब.
जी मैम। How are you, Wasim? फाइन मैम। Okay, Wasim. So quickly अपने 90 वर्ड्स हमें सुनाने शुरू करो, क्या क्या लिखा है, एंड एवरी वन ऑफ यू जो सारे कह रहे हैं ना झूठा है, चलो भाई काउंट डाउन शुरू कर दो, ये सुना रहा है हमें, एंड लुक एट दैट हाउ मेनी वर्ड्स ही हैज फाउंड इट आउट। बाकी सारे काउंट डाउन करेंगे मगर खामोशी से। आई एम टॉकिंग टू वसीम, आई एम लिसनिंग। वसीम कैरी ऑन प्लीज, क्विकली हरी अप। आयरन शूज बैग। अच्छा प्लीज एक सेकेंड वसीम, सिर्फ इतना बता दें यार, एक सेकेंड रुको आप सब, यहाँ काउंट डाउन नहीं करोगे फरहत, अपने आप दिल में काउंट डाउन करो, एंड में बता देना है मुझे कि कितने वर्ड्स थे इसके। जगह यस बताइए पहले कि आप बैठे कहाँ हैं। मैं साइकिल शॉप की दुकान में बैठा हूँ। वेरी गुड जी, साइकिल शॉप की दुकान में बैठे हैं जी। वर्ड्स काउंट डाउन शुरू कर दें, कैरी ऑन गाइस। ओके आप सब गिनेंगे और आप बोलना शुरू करें जी। मैम मेरा गला खराब है, अभी मैं नहीं बोल सकता इतना। सर ये अभी तो बोलना है, ऐसे कैसे नहीं बोल सकते आप? आपने 1 मिनट में इतना बड़ा हमें 90 वर्ड्स का 3 मिनट में जो आपने छक्का मारा, ऐसे कैसे हो सकता है वसीम साहब? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? मैम ये दूसरी बार मैं आपसे कोर्स कर रहा हूँ, मैंने आईसीएमई आपसे किया था, याद करें। यार मेरे पास इतने स्टूडेंट पढ़ के गए, मैं किस किस को याद करूं? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आप कह रहे हैं तो मैम मैं मान लेती हूँ, आप बिल्कुल पढ़ के गए होंगे, मगर बात इतनी है कि अभी जो आपने वर्ड्स लिखे हैं उनको बोल के सुनाना है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है यार। एक मेगा कंप्यूटर भी था कोई, चलो ठीक है इनका गला खराब है, माफी दे देते हैं यार। यार इंसान झूठ बोलते हुए तो थोड़ा सा अकल से काम लेता है यार, क्या कैसे लोग हो यार। अच्छा मेगा कंप्यूटर्स प्लीज, आई विल लव टू हैव यू हियर, प्लीज आइए, तशरीफ लाइए। आई हैव अनम्यूटेड यू। अल्लाह करे आपकी तबीयत सेहत, पहले इनके लिए दुआ कर देते हैं हम, अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला दें और इनकी आवाज और सब चीजें बेहतर हों तो हम इनको सुन सकें। मेगा कंप्यूटर्स प्लीज कम है। Mr. Mega Computer, I have already unmuted you 3 times. मैं चौथी बार आपको अनम्यूट करने लगी हूँ। बराए मेहरबानी कीमती वक्त में से थोड़े से लम्हे निकालिए और आइए मैदान में। अच्छा जी, अब आप समझ गए होंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेते होते यार। अगर छोड़ रहा है तो उसे छोड़ देने देते हैं। मैं हूं ना, व्हाई यू गाइस आर वरीड अबाउट इट? मैं हूं ना, सब फड़े जाएंगे यहाँ। चले, इट्स ओके। मेरा मकसद यहाँ पे बुला के किसी को भी देखिए सिर्फ लंबी नहीं फेंकनी चाहिए, फेंकते हुए तो यार सोच लिया करो क्या फेंक रहे हैं हम, बस इसलिए हमें पता है किसने कितना लिखा है। दैट इज ओके, दैट इज ओके, इट्स ओके विद दैट। अच्छा अब आ जाए जरा मुद्दे की बात पे, क्योंकि हम अगर इसको एक एक के मैं सबके सुनने लगूं तो भाई बहुत आगे चला जाएगा। मोमना, मैंने कहा ना कुछ लोग एक्स्ट्रा सियाने होते हैं, मगर क्या करें, उनका उनका सियाने, हम भी सियाने हैं फिर, तो टेक इट इजी। जिन लोगों ने पहले इस तरह की एक्टिविटीज में मतलब मेरे साथ सेशंस लिए हैं तो उनको पता है सब फाड़े जाएंगे, तो वो अगर कोई ओवर क्लावर बन रहा है तो बनने ना दिया करो उसे, 2-4 लम्हे के लिए क्या जाता है आपका। अच्छा अब इस एक्टिविटी को मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, ये होता क्या है यार। अब आप लोग ना सिर्फ लिखते जाओ, मैं खेलती कितनी दफा हूं। आप प्लीज, इस एक्टिविटी का नाम है दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? अपने दिमाग का खाका बनाना। यू नो व्हाट, इस वक्त मुझे हंसी आ गई, कशिश की बात है, कहते फेंकते वक्त देखा करो क्या फेंक रहे हैं। ओके ठीक है। अच्छा जी, तो मैं ये कह रही थी कि दिमाग का खाका बनाना होता है, और दिमाग का खाका तभी बन सकता है जिस वक्त दिमाग में वो वर्ड्स एग्जिस्ट करते हो। अगर वो वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करते तो कैसे खाका बन सकता है? मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको। मैं इस वक्त जिस रूम में बैठी हूँ, मेरे सामने दीवार है, ऊपर पंखा है। अगर मुझे पंखे की अंग्रेजी नहीं आती तो यार मैं लिखते हुए पंखा ही लिखूंगी ना, कुछ और तो नहीं लिख सकती। एम आई राइट? ऐसे ही होगा, क्योंकि मुझे पंखे की इंग्लिश नहीं आती है। सेम लाइक दीवार को मैं दीवार ही क्योंकि मुझे दीवार की इंग्लिश नहीं आती है। छोटी सी मिसाल मैं इस वक्त आपको देना चाहूंगी, जस्ट राइट नाउ। मुझे बताओ प्लीज, ये जो मेरे जिन्होंने पहले 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 कभी मुझसे पढ़ा हुआ है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग नहीं बोलोगे, बस जिसको पता हो ना वो मुझे यस कह देगा। ओवर क्लेवर नहीं बनना मेरे सामने, मैं पहले बता रही हूँ, प्लीज ये ओवर क्लेवरिंग पना स्पेशली लैंग्वेज के सेशन में साइड पे रख दो, बाकी टीचर्स को इम्प्रेस करना मेरे तो फायदे नहीं है। आई एम अ वेरी गुड गेमर, मैं पहले बता रही हूँ। मैं माइक खोल के सामने खड़ा कर दूंगी विद कैमरा, आप सुनाओ मुझे क्या करना है।
मुझे मसला नहीं इन सब चीजों से। द मेन कंसर्न इज, मुझे ये बताइए रोटी की अंग्रेजी क्या होती है? जिसको पता है, अगर जो मेरे एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं जिनको मैंने ऑलरेडी पता हुआ है, तो बराए मेहरबानी जरा 2 मिनट सब्र कर लीजिएगा, दूसरों की वोकैबुलरी चेक करने दें। रोटी की अंग्रेजी क्या? क्विकली सब लिखें। ब्रेड, ब्रेड, ओके। अगर ये रोटी लूफ, ओके ये अच्छा था। इकरा, मील, मील खाने को कहते हैं अली। अच्छा, चपाती, ये भी अच्छा है, वेरी गुड, चपाती भी कहते हैं। रोटी, अच्छा रोटी को TIE कर दो तो फिर रोटी अंग्रेजी में हो जाती है। फ्लैट ब्रेड, अच्छा। मीट, मीट का मतलब मिलना होता है भाई, क्या हो गया? रोटी, फ्लैट ब्रेड, चपाती, चपाती, समी, वेरी गुड, चपाती, चपाती, टोटिया। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता लेट मी क्लियर। ब्रेड ना डबल रोटी होती है, और रोटी को हम कहते हैं टोटिया। ये जितना मैंने भी ये वर्ड लिखा है ना, जरा सब स्पेलिंग में लिखे हैं, जो TOTRTILL वाली, प्लीज सब स्पेलिंग छोड़ दिए, वाली स्पेलिंग लिखे हैं सब, जो TOTR लिख रहे हैं सारे, ये वाली स्पेलिंग कॉपी करके लिखे कमेंट में, TORTILL, टोटीला जो लिखा जा रहा है। एवरी वन ऑफ यू राइट डाउन टोटीला, वेरी गुड। ये टोटीला नहीं होता, पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन इसकी है टोटिया, एल साइलेंट है इसमें। इसका मतलब होता है चपाती। चपाती क्या होती है? ये वही जो आप खाते हो, रोटी जो होती है। ब्रेड होती है डबल रोटी। अब मेरे ख्याल से अगर आप किचन में होते तो आपके सामने रोटी बड़ी भी होती, यू गाइस वुडंट कैप्चर दैट, आप लिख देते ब्रेड, ब्रेड डबल रोटी होती है, दैट इज नॉट टोटिया। टोटिया होती है वो रोटी, वो जो आप रोटी खाते हो ना, वो वाली, राइट? अच्छा, देयर इज एन अनदर थिंग, मुझे बताओ निवाले को क्या कहते हैं? अब रोटी से जरा ये निकल आया, क्योंकि वो टुकड़ा टुकड़ा भी किसने किया, लूफ टुकड़े को क्या, निवाले को क्या कहते हैं बताओ जरा क्विकली। मैं सेशन को वाइंड अप करना चाहती हूँ, बट मुझे लगता है कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा और ये बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग तो चलती रहेगी, मुझे तो मजा आता रहना पढ़ाते हुए, और आप लोग बोर हो जाएंगे। लुकमा, ये शहजादा अंग्रेज, अच्छा अब सियाने हो गए हैं सारे। पीस ऑफ ब्रेड, ये अच्छा था, ट्रांसलेशन कर दो सारी। अ पीस ऑफ बाइट, बाइट 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 बाइट, ओके, कुछ तो नया बोलो यार। शाबाश, शॉप, शाबाश, वेरी गुड कशिश, वेरी गुड, वेरी गुड कायनात, वेरी गुड, एक्यूरेट वर्ड आ गया जी, आ गया आ गया आ गया। द वर्ड इज मॉसल, दिस इज नॉट बाइट, दिस इज कॉल्ड मॉसल। मैंने एक फर्क समझाती हूँ आपको बाइट और मॉसल के दरमियान में, लेट मी क्लियर। मैं आपको इन दोनों का, ये दोनों सेम होते हैं, आप लोग जो लोग बाइट कह रहे हैं ना वो भी ठीक कह रहे हैं। मैं तो प्लीज थोड़ा सा, मुझे प्लीज थोड़ा सा ऐसे 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसका फर्क बता दूं। मॉसल पता है क्या होता है? आप जिस वक्त रोटी लेते हो, इमेजिन करें आप पिज्जा खा रहे हो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप पिज्जा को तोड़ो, मतलब उसका पूरा का पूरा स्लाइस उठाओ, और स्लाइस उठाने के बाद आप हाथ से, बवजह मजबूरी तो ऐसा हो सकता है, किसी ने कोई हो सकता है, कोई बीमारी, कोई बीमार हो, किसी वजह से च्यूइंग ना कर सकता हो, या टीथ का कोई इशू हो, एक जेन्युइन इशू पे, वो थोड़ा सा प्लीज शुगल ना मारिएगा, अभी यहाँ पे समझने वाला कॉन्सेप्ट है तो इसे समझिएगा। अगर आप पिज्जे का स्लाइस उठाते हो, कभी आप उसके उठा के जैसे रोटी का आप निवाला बनाते हो प्रॉपर, रोटी के एक छोटे से टुकड़े को तोड़ते हो और उसके बाद जो है वो आप उसका लुकमा बना के खाते हो, क्या आप पिज्जे के साथ ऐसा करते हो? प्लीज राइट डाउन यस और नो, कि पिज्जे का स्लाइस उठाया फिर उसके बाद उसका निवाला निवाला तोड़ के और फिर आप खा रहे हो, कैसा होता है? नहीं होता। क्या आपने कभी बर्गर ऐसे खाया? क्या आपने कभी चॉकलेट ऐसे खाई, चॉकलेट पूरी उठाई और उसके बाद उसके निवाले बना रहे हो बैठे हुए? नहीं, वो आप प्रॉपरली, ये होता है बाइट, जो ऐसी चीज जिसे आप पूरी की पूरी को हाथ में उठाओ और उसके बाद अपने टीथ से चंक करो, और उसके बाद इस प्रोसेस को, ये होता है एक बाइट देना यार मुझे, अच्छा वो हमने प्रॉपरली मुंह में डाला एंड वी टेक द बाइट, दिस इज कॉल्ड बाइट, गेटिंग द पॉइंट, ये होता है बाइट। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? पूरी रोटी उठाओ हाथ में, उसके ऊपर डालो सारे का सारा सालन, और फिर उसके बाद उसे लेके हाथ में और टेक द चंक, इज इट पॉसिबल? कर सकते हो, ट्राई करना, जूती खा लो अम्मा से, तो फिर मुझे नहीं बताना भाई, मैं तो पूछ रही हूँ, इट्स नॉर्मल क्वेश्चन, अलीमन क्वेश्चन, गरीब का सवाल है ये तो, ऐसा नहीं होता। ओके मिस अनिका वर्दा, साउंडिंग बैड फॉर योर सिस्टर,
ओके, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो आप निवाला, दिस इज कॉल्ड मॉसल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लुकमा क्या होता है भाई, मॉसल क्या होता है? वो जो आप थोड़ा सा पीस तोड़ते हो, उसका लुकमा बनाते हो, फिर उसको कश्ती की तरह पूरे सालन में डुबाते हो और फिर खाते हो। दिस इज कॉल्ड मॉसल, सिंपल। मगर ऐसी चीज जिसको आप हाथ से पूरे को उठा रहे हो और उसको उठाने के बाद, अच्छा स्पेलिंग सबने ठीक लिखी है, MORSEL ही होता है, मगर इसमें आर साइलेंट है, इसे हम बोलते हैं मॉसल है। नूर, आई होप यू गॉट दैट। ठीक हो गया यहाँ तक? अभी देखें, ये वो बड़े, मुझे बताया कौन सा ऐसा बंदा जो निवाला नहीं खाता? कौन सा ऐसा बंदा जो रोट, मैंने कुछ अभी तो मैं हाई फाई वोकैबुलरी पे तो गई ही नहीं हूँ। मैं तो अभी नीचे ही खड़ी हूँ, कहीं भी नहीं गई हूँ मैं। वसीम, आपको नींद आएगी, असल में आपका गला खराब है ना, इसलिए आपको नींद आ रही होगी। आपकी मजबूरी है, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को। आपको तो नींद आनी बनती है। अच्छा, तो बात कर रहे थे जी हम अपनी। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। आई होप ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, कि हमने अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना है, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू गो विद इट। दैट्स इट अबाउट इट टुडे। मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जा रही। हालांकि दो तीन चीजें और थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, बट मुझे नहीं लगता कि हमें इसे मजीद लॉन्ग को लेके जाना चाहिए। बस जिंदगी हमारी यही यही घिसी पिटी चल रही है यार। जलेबी की अंग्रेजी बता दो, दही बल्लों की अंग्रेजी बता दो, गोलगप्पों की अंग्रेजी बता दो। मतलब हम अपने आप को चैलेंजेस ही दे रहे हैं बस बैठे बैठे, और कोई काम नहीं है। बस ये हम खुश हो जाते हैं इनकी अंग्रेजियां जान जान के इनको क्या कहते हैं। ये भी किसी ने ऊपर सेक्शन में लिखा था, प्रेयर मैट। अच्छा, अब हम एक एक्टिविटी में एक असाइनमेंट दे रही हूँ आप सबको। मैं असाइनमेंट दे दूँ, इजाजत है? या और पढ़ना है? और पढ़ना तो मैं पढ़ा देती हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। हुक्म ऐसे बस आप मुझे इशारा तो करें, देखें फिर वर्ड्स आते देखें आप। उसके क्या आप लोग बैठे हुए कहेंगे कि यार ओ मैम वाकई ये भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था। डन। अच्छा यार, ये बड़ा खूबसूरत वर्ड इन्होंने ऐड कर दिया। मैं एक आखिरी वर्ड सिर्फ लेके जा रही हूँ, उसके बाद मैं असाइनमेंट पे आ रही हूँ। मैं आखिरी वर्ड बता रही हूँ। ये देख रहे हैं, इकरा ने एक वर्ड लिखा है कमेंट में। इकरा का वर्ड है, मुझे नहीं पता ये इन्होंने जान के लिखा है या इनसे गलती से लिखा गया, मगर अगर लिखा गया तो भाई साउंडिंग कोड, बड़ा मजा आ गया वर्ड देख के। दिस इज कॉल्ड वे। आखिरी लफ्ज पूछ रही हूँ यार, उसके बाद बाइंड अप करूंगी यहाँ पर और हम असाइनमेंट की तरफ जाए। मुझे बताओ शिदातो, लस्सी को क्या कहते हैं? कमान, क्विकली, लस्सी की अंग्रेजी बता दो यार। लस्सी की दूध को मिल्क कहते हैं, मक्खन को बटर कहते हैं, और क्या था, और क्या होता है उसमें, दही को कर्ड कहते हैं, मगर लस्सी को क्या कहते हैं भाई? वे। वेरी गुड, वे कहते हैं जी। बटर मिल्क नहीं कहते, वे कहते हैं, जो ये सब लिख रहे हैं इस वक्त। अच्छी बात है कि ऊपर से इकरा का कमेंट सबने पढ़ लिया था। यार अब जो चाहे बना लो अपनी जबान में, तो मैं कहती हूँ वाटर मिल्क और बटर मिल्क और पोटैटो मिल्क, जो चाहे बना लो। ये अच्छा था, कहती लस्सी को कहते हैं लस्सी। दिस इज गुड। लूसी और लस्सी, द चॉइस इज योर्स कह सकते हो, मगर एक्यूरेट अंग्रेजी में इसको वे कहते हैं। इंग्लिश कम्स टू मी, इंग्लिश कम्स टू मी एंड आई कम टू इंग्लिश। गुड, लस्सी, दैट्स समथिंग गुड। बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, मगर एक्चुअल में वे कहते हैं। अच्छा भाई, लेट्स क्लोज अप। बहुत, मुझे बहुत मजा आया टू बी वेरी ऑनेस्ट आप सबको पढ़ा के। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर हैविंग सच अ ग्रेट सेशन टुडे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई रियली एंजॉय द सेशन विद अ वेरी 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 एनर्जेटिक पार्टिसिपेंट्स। तो शहजादों शहजादियों, चीजों को वाइंड अप करते हैं और क्लोज करते हैं यहीं पे। बहुत टाइम हो गया माशाल्लाह, 1 घंटे से हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस डिस्कशन को प्रॉपरली क्लोजअप पे मैं लेके जाऊंगी असाइनमेंट के थ्रू। अभी आप लोगों ने करना क्या है, सिर्फ 2 काम है। मैं आपको 2 असाइनमेंट दे रही हूँ जो मैं नॉर्मली सबको देती हूँ, और मैं यही असाइनमेंट आप लोगों को देने वाली हूँ। पहली चीज कि आप लोगों ने अपने रूम का सर्वे करना है। किस चीज का जी? बेडरूम का, ठीक है। और दूसरा सर्वे आपने करना है जी वॉशरूम का। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार मैम क्या क्या करा रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली करना तो पड़ेगा। यू आर द ले मैन। मेरे ख्याल से हर किसी के घर में वॉशरूम होता है। वॉशरूम में मौजूद एक एक चीज की वोकैबुलरी, लोटे से लेकर, टूटी से लेकर, पानी से लेकर, हर एक चीज की अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। दैट्स इट। शर्माने वाली कौन सी बात है? लोटा सबके घर में होता है भाई। व्हाट द हेल इज दिस? हाँ बस मेहरबानी करना, अल्लाह का वास्ता यार,
वॉशरूम का दरवाजा बंद करके अंदर ही असाइनमेंट ना करने बैठ जाना। पता लगे 1 घंटे तक बाहर कुंडियां बज रही हैं और पता लगे जी हमें कॉल्स आ रही हूँ, यार ये ऐसी कौन सी असाइनमेंट्स दे दी हैं आप लोगों ने जो बच्चे हमारे वॉशरूम में बंद होके कर रहे हैं। मेहरबानी करना यार, मैंने ऐसा नहीं बोला, सर्वे करके बाहर आ जाना, बाहर बैठ के सुकून से अपने बेडरूम में सर्वे कराना बस। पता लगे पेन और पेपर लेके घर वाले भी परेशान हो, यार ये पेन और पेपर लेके अंदर क्यों जा रहा है। खोला हाथ, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना। तो वॉशरूम से रिलेटेड वोकैबुलरी प्लस आपके बेडरूम से रिलेटेड वोकैबुलरी थोड़ा सा ख्याल रखना है। पता लगे मुझे कॉल्स आ रही हैं, कैसी कैसी असाइनमेंट्स करा रही हैं आप, मेरी टीम बेचारी परेशान हो जाए, मैं सदीका केड़े पासे टोर रहे हो भाई। तो ये 2 चीजों की वोकैबुलरी कम से कम 50-50 वर्ड्स। मैं वही कह रही हूँ ना, घर वाले परेशान है, कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। 50-50 वर्ड्स मुझे आप सबके चाहिए जी। वॉशरूम से रिलेटेड भी मैम जिस चीज को हम चंक करके खाएं उसे क्या कहते हैं? हमजा उसको मैंने बोला है उसे हम बाइट कहते हैं। 1 सेकंड मुझे क्वेश्चन लेने दें। जी बाइट कहते हैं यार, मैं बता चुकी हूँ। दैट्स इट। 50 वर्ड्स रिलेटेड टू द बेडरूम, 50 वर्ड्स रिलेटेड टू द वॉशरूम। क्लियर? अब मुझे आप ढूंढ के दोगे किस चीज को क्या कहते हैं। ये ऐसे ही सर्कल बनाओगे आप, बीच में लिखोगे बेडरूम और इर्द गिर्द लाइंस लगा के सारा कुछ लिख डालोगे क्या कुछ क्या है। और प्लीज स्पेसिफिकली वो वर्ड्स की लिस्ट याद रखनी है जो आपने नहीं की हो। इकरा मैं क्यों बताऊं लोटे को क्या कहते हैं, आपने ढूंढना, मैं क्यों बताऊं। माइंड मैपिंग करेंगे। वेरी गुड, दैट्स इट फॉर टुडे जी। यहाँ कर रहे हैं हम आज के सेशन को वाइंड अप जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक विद द सेम एनर्जी, विद द सेम पैशन, विद द सेम लव, विद द सेम ऑफ योर डिवोशन रिगार्डिंग द इंग्लिश लर्निंग। सो विल लव टू हैव यू। बहुत मजा आया आप लोगों को सेशन पढ़ा के। इंशाल्लाह आई लव टू कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे जी। जज़ाकल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकुम टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।